براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم سب کو اپنے کلام کی باتوں سے روشناس کروا کر برکت دے رہا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا حاصل؟ خدا کی باتیں، اگر انسان اختیار پا جائے، دنیا کی ساری طاقت اس کے پاس ہو، جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کو مل جائے، بہت کامیاب اور بابرکت بھی سمجھتا ہو، لیکن اگر اس کی آخرت کی ضمانت اور یقین اس کو نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ گزرے گی، تو پھر جو کچھ بھی وہ دنیا میں ساری دنیا کو حاصل کر لے، اپنی جان کا نقصان اٹھائے، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، اور وہ نقصان میں ہے، روحانی منزل اس کی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے عقیدے ہیں، اعتقاد ہیں، جو باتیں مبہم ہیں یا سمجھ میں نہیں آتی یا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے عقائد سے متصادم ہیں، ٹکراتی ہیں، ضرور ہے کہ ہم ان کے بارے میں کھوج لگائیں، تحقیق کریں اور جانیں۔ لیکن تحقیق کن رویوں میں ہوتی ہے؟ آج کمی کہاں ہے؟ جب کوئی شخص خاص طور پر مذاہب کے بارے میں، تعلیمات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو رویے کیا ہونے چاہیے؟ پہلے ایک کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں دور حاضرہ کے جید علماء میں سے بہت بڑا نام جاوید غامدی صاحب سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا، کمی کہاں ہے اور یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر کہیں ملے گی یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب مل کر دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو یہ بتائیے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان تنقید برداشت نہیں کرتے، اور اگر ان پہ کسی قسم کی بھی تنقید کی جائے تو وہ اس کا جواب قتل و غارت گری سے، دھمکیوں سے دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نام نہاد اسلامک اسٹیٹ، جو کہتی ہے کہ ہم خلافت اسلامیہ لے کر آئیں گے اور اس کے پرچم تلے پوری دنیا کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گے، لیکن ان کے بھی جو بھیانک مظالم ہیں کسی سے نہیں چھپے ہوئے۔ آپ کے خیال میں کیا مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل مذہب میں ہے یا سیاست میں اس وقت؟ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل علم میں ہے۔ یعنی ان کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے وہ علمی رویہ ہے۔ علمی رویے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر سوال پیدا کریں، ان کو سوال کرنے دیں، ان کے سوال کا جواب دیں، اور جواب دینے میں بھی یہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ کوئی چیز آپ ان پر ٹھونس رہے ہیں، بلکہ اس طریقے سے بات کریں کہ خود ان کے اندر سوچنے کا صحیح زاویہ پیدا ہو۔ یہ چیز جب تک آپ مسلمان ملکوں میں پیدا نہیں کرتے، وہاں ڈیموکریٹک کلچر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ یہ جو آپ اس وقت کی صورتحال دیکھ رہی ہیں، اس صورتحال کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جدید تعلیمی اداروں میں اور ہمارے پرانے تعلیمی اداروں میں، یا مدارس جن کو آپ کہتے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی روا نہیں رکھا گیا کہ لوگ پوچھیں، سوال کریں، وہ چیلنج کر دیں، کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو علم کی بنیاد بنتی ہے، یہ علم کا پہلا قدم ہے۔ ہم نے اس میں لوگوں کو تربیت نہیں کیا، نتیجتاً ہمارے ہاں سیاست بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہمارے ہاں مذہبی گفتگو بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے، اگر ہم ایک مرتبہ اپنے ہاں اچھا علمی کلچر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے اثرات سیاست پر بھی ہوں گے، اس کے مذہبی فکر پر بھی ہوں گے، اس کے ہماری معاشرت بھی پہ ہوں گے، اور بالآخر ہماری تہذیب پر۔ کسی چیز کی پتہ بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ ایک ایسی قوم جس کی صدیوں کی تاریخ ہے، جس میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ علم ناآشنا ہے، ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی۔ یعنی اپنی بات کہیے، لوگوں کو اس کا قائل کیجیے، دانشوروں کو مخاطب بنائیے، علماء کو بھی مخاطب بنائیے، سیاستدانوں کو بھی، اور پھر ان تینوں طبقات سے یہ گزارش کیجیے کہ آپ کی قوم کی بربادی اور تباہی کا باعث جو چیز بنی ہے وہ اصل میں علمی اور تحقیقی رویوں کا ناپید ہو جانا ہے۔ میری ایک تنہا آواز تھی کسی زمانے میں، آج شاید دنیا کا کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو سننے والے موجود نہ ہوں۔
یہ بتائیے اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگایا، آپ علامہ نہیں بنے، مفتی نہیں بنے، امام، ڈاکٹر، پروفیسر، کچھ آپ نے ٹائٹل نہیں لگایا، کیا وجہ ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں اور میری آرزو ہے کہ میں طالب علم پیدا ہوا تھا، طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں جو مشن لے کے اٹھا ہوں وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کو بھی یہ دعوت دوں کہ وہ بھی سچے طالب علم بنے، اور طالب علم کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ پہ جو لبرل ہونے کا ٹھپا لگتا ہے، آپ اس کو کمپلیمنٹ سمجھتے ہیں، کرٹیسزم سمجھتے ہیں، یا کچھ نہیں سمجھتے؟ میں ایسی چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ہی منزل ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے سچائی کو جاننا ہے۔ میں سچائی کو جاننے کے سفر کا مسافر ہوں، اس وجہ سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے بہرحال اپنی بات کہنی ہے اور میں اپنی بات ہمیشہ دلیل کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے غامدی صاحب کی باتیں سنی ہیں۔ اب یہ ہمارے دونوں، وہ بہن اور غامدی صاحب دونوں مسلمان ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اس وقت کس چیز کی کمی ہے اور وہ کمی کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے۔ بہت واضح طور پر غامدی صاحب نے جو اہم نکات رکھے ہیں ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ سوال کیجئے اور لوگوں کو سوال کرنے دیں، ان پر اپنی رائے کو مت ٹھونسیے، آپ بس ان کو بتائیے کہ یہ جواب ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا بربادی کا سبب کیا ہے؟ علمی رویوں کا ناپید ہو جانا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر بات تعصب کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سچائی کو جاننے کا مسافر ہوں۔ علمی کلچر پیدا ہونا چاہیے۔ اور جب خدا نے مجھے بلایا اس خدمت کے لیے تو میرے دل میں بھی یہی خواہش ہے، خاص طور پر بر صغیر میں مسلمان اور مسیحی اور دیگر مذاہب کے لوگ جتنے بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کو تعصب کی اینکیں اتار کر علمی رویوں میں آ کر سوال اٹھائیں، جوابات دیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو واقعہ نجران جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو۔ ورنہ تاریخ میں بہت سی باتیں ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں۔ لوگ جو بری باتیں ہیں، جو غلط فیصلے ہوئے، ان کو آج بھی جاری رکھنے کے لیے بہت زیادہ جوش و جذبے سے بھرے رہتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے، جہاں پر پازیٹیو چیزیں ہیں، اس طرف رجحان کچھ کم ہے۔ تو واقعہ نجران میں یہ تھا کہ دونوں گروہ مسلمان اور مسیحی جمع ہوئے، مختلف موضوعات پر بات کی، یہاں تک کہ مسجد میں مسیحوں نے نماز بھی ادا کی، اپنی مذہبی جو فرائض تھے وہ ادا کیے، اور پھر جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ غامدی صاحب آج کے دور کی بات کر رہے ہیں، تو اس دور میں سوالات پوچھنے چاہیے، لیکن یہ انہوں نے پھر کہا تعصب کی اینک اتار کر بات تھوپی نہ جائے۔ اور جو پہلے انہوں نے سوال کیا، جو خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ دھمکیاں، قتل و غارت، اگر آپ ہمارے فیس بک پر، جو پروگرام کا فیس بک ہے، ہماری زندگی ٹی وی کی ویب سائٹس ہیں، وہاں پر جائیں تو قتل کر دیں گے، معاف نہیں کریں گے، آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ میں پوری دنیا کے لوگوں کو، ساری ایجنسیز کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے فیس بک پیجز پر جائیے۔ میں علماء کو بھی مخاطب کرتا ہوں، سیاستدانوں کو بھی کرتا ہوں، اور جو خاص طور پر جو طلبہ ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ ہمارے ویب پیج پر جائیے، وہاں پر قرآنی آیات ہیں، بائبل کی آیات ہیں، اور ان سے سیکھنے اور ان پر تحقیق کرنے کی دعوت ہے۔ تو آپ خود جا کر دیکھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، جی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، بھاگنے نہیں دیں گے۔ بھائی کچھ خدا کا خوف کریں، علمی رویوں میں آ جائیں، آپ سوال اٹھائیں، جواب لیجئے، دوسرا بھی اگر کوئی سوال کرے تو علمی رویوں، علم التفسیر کے مطابق آپ جواب دیجئے۔
अगर आपके पास जवाब नहीं है तो खुद तलाश कीजिए, ढूंढिए, लोगों को मौका दीजिए, बात करें। इस तरह से मोहब्बत, खुलूस, बर्दाश्त और भाईचारे के रिश्तों से मुआशरे तरक्की करते हैं। वरना जो हालत इस वक्त हो चुकी है, मासूफ ने बहुत वाज़ेह तौर से कहा है कि उसकी वजह क्या है। लोग ना खुद सीखते हैं, ना जो सीखने वाले हैं उनको अब भी मौका देना चाहते हैं कि वो सीखें, उनको भी डराना शुरू कर देते हैं कि आप गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो मैंने चंद आयात दी थी कि उसमें लिखा हुआ है कि वो भटक नहीं सकता, जिसको खुदा ने हदायत दी है वो भटक नहीं सकता। और वैसे भी आयात से क्या डरना है, अल्फाज से क्या डरना है। अगर कोई कहे कि खुदा पर कोई गालिब आ जाएगा, खुदा को कोई शिकस्त दे देगा, तो क्या यह मुमकिन है? अगर कोई मजहब इल्हामी होने का दावा करता है तो जिसको खुदा, मजहब को अगर वो इल्हामी है, खुदा ने रखना है, तो कौन उसे इस दुनिया से खत्म कर सकता है जिसे खुदा रखना चाहे। तो जरूरी है कि हम समझें, जाने और देखें। हमारे एक फेसबुक पर शख्स ने लिखा था सवाल, उस पर हम बात करें। पहला शो किया था, आज उसका दूसरा हिस्सा है। इन्होंने पूछा था कि कहाँ यीशु मसीह ने या उनके शागिर्दों ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, और उन्होंने कहा ये तो पौलुस की अपनी इख्तरा है, उसने क्रिश्चियनिटी को हाईजैक किया है। तो इसका जवाब दे रहे हैं, यीशु मसीह ने भी कहा मैं खुदा का बेटा हूं, और फिर शागिर्दों ने भी कहा, और इसके अलावा आसमान से आवाज आई, फरिश्ते ने भी कहा। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं ये बात बताना चाहता हूं पूरी दुनिया के लोगों को कि जब आप सवाल उठाते हैं, खास तौर पर बाइबल की बात करते हैं, तो बाइबल का जो दौर है, जो जमाना है, जो मुखातब है और जो मुखातबीन है, वो देखना पड़ेगा कि उस दौर में कौन थे। मुखातब है, अगर यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो जिनसे बात हो रही है वो कौन है। उनमें उस वक्त जो, अगर आप जानना चाहें, इन बातों को समझना चाहें, तो यहूदी मजहब को समझना पड़ेगा। रोमी उस वक्त हुक्मरान थे, उनके मज़ाहब को समझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उस वक्त जो यूनानी मजहब और फलसफा है वो अरूज पर था, उसको भी समझना पड़ेगा। फिर आप इन बातों को समझेंगे। और अगर आज आप जिस मकाम पर, जहां से जो बातें आपने सीखी है, उनकी रोशनी में समझना चाहेंगे, तो जरूर है कि पहले आप उस दौर में जाएं कि जो बात करने वाला है वो क्या समझाना चाह रहा है, लोग उस वक्त कैसे समझ रहे थे। तो आइए आपको माजी में ले चलते हैं। पहले जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो उस दौर में जो यूनानी तसव्वुर था और रोमी मज़ाहब में तसव्वुर था, जब कोई कहता था कि मैं खुदा का बेटा हूं या खुदा का बेटा टाइटल जो है इस्तेमाल किया जाता था, तो इंग्लिश के अल्फाज उर्दू में कुछ कर दिए हैं तर्जमा, लेकिन पहला यहां पर मैं बताना चाहता हूं जल्दी जल्दी से, ताकि हम इन बातों को देख सकें। पहला जो हेलिज्म है, इंसान खुदाओं यानी देवताओं का बेटा हो सकता है। अब उस वक्त के जो लोग थे, याद रखिए, जिनसे खिताब किया जा रहा है, मुखातबीन जो हैं, उनसे जब बात हो रही है तो वो क्या समझते थे उस वक्त। उस वक्त इंसान खुदाओं या देवताओं का बेटा हो सकता था। और जो द्यो मालाई दास्ताने, मैथोलॉजी जिसको कहते हैं, उसमें भी अगर देखें तो तसव्वुर था कि कोई देवता या खुदा किसी इंसानी औरत के साथ रिलेशन से अगर औलाद पैदा हुई है तो उसको वो सुपर ह्यूमन या मफौकल फितरत इंसान कहते थे। और एक और तसव्वुर भी था, कोहैबिटेशन। इससे मुराद ये था कि जिंदा मखलूकात इकट्ठी रहती हैं और जो औलाद हैं शादी के बंधन के बगैर हो जाना, यह भी तसव्वुर मौजूद था। मेन इसमें यह है कि इंसान देवताओं का बेटा हो सकता है। तो याद रखिए, जो उस वक्त लोग थे, यह तसव्वुर आम था उस दौर के लोगों में। फिर तीसरा जो है, जो सियासत में जो लीडर्स थे या हुक्मरान थे, उनके जो जानशीन होते थे, उनको भी बेटे कहा जाता था। जानशीन है वो फरजंद कहलाते थे। और उस दौर में रोमी जो हुक्मरान होते थे वो भी अपने आप को खुदा और देवता का दर्जा देते थे। अगर आप कैसर की हिस्ट्री पढ़ें और उस दौर का मुतालिया करें तो बहुत से हुक्मरान थे जिन्होंने अपने आप को खुदा डिक्लेयर किया, और फिर उनकी परस्तश के लिए लोगों को जबरदस्ती ये कहा गया कि आप जो कैसर है या जो हुक्मरान है रोमी, उसकी आप परस्तश करें, और उसके जो जानशीन होते थे वो भी उसके बेटे कहलाते थे। तो ये भी तसव्वुर उस वक्त मौजूद था। तिब के मैदान में भी उस दौर में
अक्सतीसियस ये एक लफ्ज़ है, अगर प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त ना हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ये एक तस्वुर उस वक्त भी मौजूद था तिब के मैदान में, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था किसी के लिए जिसका मतलब ये होता था एक हीरो या शिफा देने वाले खुदा का बेटा। जहां से अगर कोई देवता शिफा दे रहा है, या अगर कोई हकीम है, उसका शागिर्द है, उसके हाथों से शिफा मिल रही है, उसको शिफा देने वाले का बेटा भी कहा जाता था। पांचवी बात जो उस वक्त मौजूद थी वो थी कि जो कोई शख्स पुरस्कार ताकतें रखने वाले थे और उन ताकतों का कोई नाम दिया जाता था, वो उस ताकत के बेटे कहलाते थे। और जब यहूदी तस्वर में हम आते हैं तो जो उस वक्त यहूदी थे उनमें तस्वुर बेटा किस तरह से था, आइए वो भी देख लेते हैं। जो बादशाह थे उनको बेटा कहा जाता था। यहूदी तारीख में जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, याद रखिए कि खुदा को बतौर बादशाह माना जाता था आगाज में, और फिर जब आप देखते हैं सौल नबी को जब बादशाह बनाया गया, उससे पहले खुदा हाकम आला था, और उसके बाद जो हाकम बनी इसराइल के बनते थे, बादशाह बनाए जाते थे, उनको भी बेटा पुकारा जाता था। ये आपके सामने आयात रखी हुई हैं। वो मुझे पुकार कर कहेगा तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान, मैं उसको अपना पहलोठा बनाऊंगा और दुनिया का शहनशाह। इसके बाद फिर हम और आयात देखते हैं, इसमें भी ये तस्वर मौजूद है। इसके साथ आसमानी मखलूक को भी बेटा कहा गया है। हवाला जात आपके पास ये सामने आपके रखे हैं, आप देख सकते हैं। चूंकि वक्त महदूद होता है इसलिए इसमें कोशिश करते हैं कि जितनी बातें मालूमात आप तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया है। अब इसराइल यहां पर हम देखते हैं, और जो फिर खुदा की मोहब्बत पाने वाले लोग थे उनको भी खुदा का बेटा कहा जाता था। अब यहां पर मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूं। इसराइल को जब खुदा का बेटा कहा गया है, बहुत से तौरेत में हवालाजात मिलते हैं, तो ये जो इसराइल को खुदा का बेटा क्या कहा गया है, यीशु मसीह तक आने के लिए इसको समझना भी थोड़ा जरूरी है। मुख्तसर बयान कर रहा हूं, बाकी आप खुद तहकीक कीजिए। ये बातें रोज़े रोशन की तरह आया हैं, लेकिन अगर कोई शख्स इल्मुल तफसीर की रोशनी में पढ़ने के लिए कायल है, तो अगर कोई शख्स अपनी बातों को दूसरों पर ठोंसना चाहता है और माजी को देखना नहीं चाहता, जिस तरह से तालीम है उसको समझना नहीं चाहता, तो फिर उसकी हालत के बारे में क्या कहा जा सकता है। अब बनी इसराइल, पहली जो बात उनमें यह थी क्यों वो खुदा के बेटे कहलाए, और ये किसी इंसान ने टाइटल नहीं दिया, ये खुदा की कुतुब में जो खुदा ने मुकाशफा दिया उसमें खुदा ये कहता है। अब इसराइल पहले जो नंबर पर बात है वो कैसे खुदा के फर्जंद कहलाए हैं, वो खुदा के चुने हुए लोग थे। पहली बात जो बाइबल में तौरेत में बहुत वाज़ेह है कि खुदा ने चुनाव किया, और इसराइल को खरूज की किताब 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में, और फिर यर्मिया का सहीफा 31 बाब और उसकी 9वीं आयत में, यहां पर वो कहता है कि तू मेरा पलोठा है। ये खुदा कह रहा है इसराइल के बारे में, चूंकि उसने उन्हें चुना है कि वो मेरे लोग हैं। देवी देवता जब किसी को चुन लेते थे, कोई किसी शख्स का चुनाव होता था, ये तस्वुर आम था कि ये उस देवी देवता का बेटा है, चूंकि ये उसके लिए मखसूस है। तो जब खुदा ने अपने लिए लोगों को मखसूस किया तो उनके लिए यही टाइटल खुदा ने दिया है। और फिर ये दूसरी जो बात है इसराइल के लिए, पहली कि वो चुने हुए लोग हैं, और अगर आप इब्राहिम का नाम देखें तो उसके बारे में लिखा हुआ है कौमों का बाप। तो पहले इसराइल और उसके बाद कौम है। चूंकि खुदावन ने जब अपने बंदा इब्राहिम को बुलाया तो उसने कहा मैं तुम्हें बरकत दूंगा और तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें और कबीले बरकत पाएंगे। अब इसराइल बेटा इस्तेमाल किया गया इसलिए कि खुदा ने उनका चुनाव किया अपने लिए। दूसरी बात, ये खुदा चूंकि बादशाह था तो वो शख्सी तौर पर कहता है कि जो मेरे इख्तियार को आगे लेकर जाने वाले हैं और मेरी इलाही बादशाहत को आगे पहचाने वाले हैं, वो जमीन पर मेरी बादशाहत और अहकाम को लाने वाले हैं। इसलिए जब दूसरे शमूएल 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में दाऊद बादशाह की बात होती है तो वहां पर लिखा है मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा।
अब शख्सी तौर पर खुदा कह रहा है कि मेरी बादशाही जिस खानदान से, जिस नस्ब से चलेगी, वो मेरा बेटा होगा। और फिर एक तस्वुर है ले पालक का, और ले पालक जब बेटा लिया जाता था तो फिर पूरी जो कम्युनिटी होती थी उसके सामने ऐलान किया जाता था कि ये मेरा बेटा है। अब यहां पर अगर आप देखें ज़बूर 2 और 7वीं आयत है, और फिर अगर हम देखें आगे और बहुत से हवाले हैं जिन पर बात की जा सकती है। और ये शाही जानशीन हैं खुदा के, जो दाऊद की नस्ल से आगे होंगे। और मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील बहुत वाज़े कर देती है, वहां पर नाम आ जाते हैं अमैनुएल, मसीह, और फिर ये बादशाहत जो है वो आगे चलती है। तो बनी इसराइल को जब आप समझते हैं तो इस तरह से खुदा उनको अपने बेटे कहता है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं और फिर हम बात को जारी रखेंगे। जब मसीह ने कहा मैं बेटा हूं, उसका पस मंजर बयान कर रहे हैं। जी, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह पाक करम। आप सुनाएं। जी, बहुत शुक्र है खुदामंद का। तो आप बातें सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए, आप ऑन एयर हैं। जी जी, मैं पाकिस्तान से गुजरांवाले से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है नजम खान। आपसे फेसबुक पर कमेंट भी मैंने दिए थे। तो मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, आप मुझे इसका जवाब बाइबल की रूह से देना, कुरान का हवाला नहीं देना। मैं सिर्फ बाइबल की रूह से इसका जवाब सुनना चाहता हूँ आपसे। बात कीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपकी बुक है ओल्ड टेस्टमेंट, जिसको आप बोलते हैं पुराना अहदनामा, पैदाइश का बाब है और सफ़ा नंबर 14 आयत नंबर 17, जहाँ लिखा है खतने का हुक्म। अच्छा, उसमें लिखा है खुदा ने अब्राहम से कहा, सारी जो तेरी बीवी है उसे अब सारी कहकर मत पुकार, उसका नाम अब तैरा हो गया है। उसे मैं बरकत दूंगा, वो कौमों की माँ होगी और उससे आलम जहाँ के बादशाह पैदा होंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे सवाल कहने का ये मतलब है कि आप मुझे बताएं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हाजरा से पैदा हुए थे, इब्राहिम के बेटे, और हज़रत इसहाक जो सैरी से पैदा हुए थे, उनमें से बड़ा कौन है? ये तो आपको भी पता है बड़ा कौन है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं सर, आप बताएं ना। अस्माइल पहले पैदा हुए ना, बाद में इसहाक है। तो अब आप बताइए सवाल क्या है वो आप कीजिए। क्लियर हो गया ना? इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हैं ना। आगे आपकी बाइबल में लिखा है सफ़ा नंबर 19 आयत नंबर 22 है। आप सवाल बताइए, आयात का मोहतरम, आयात का हमें पता है, आप सवाल बताइए बस। सवाल क्या है आपका उसमें? सवाल मेरा ये है कि आपकी बाइबल इसको एक्सपेक्ट नहीं करती जो इधर लिखा है ना, कुछ अर्सा बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, उससे कहा कि आप अपने इकलौते बेटे जिसको तू प्यार करता है उसको कुर्बान की राह में, मतलब लिखा है कुर्बान कर। इकलौते बेटे से आप क्या मुराद लेते हैं, मुझे ये समझाएं। अच्छा, अब अभी मैंने बात की कि आपको समझना पड़ेगा कि यहूदी जो रस्म और रिवाज हैं वो क्या है, उस दौर में आपको जा रख के देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेते ना, सुनिए आप बात सुन ले, बात सुने, मैं अभी बता देता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिए। अब उस दौर में ये होता था कि बेटा जो है वो किसको माना जाता था, ये जरा सुनिए गौर से, ठीक है? जो उस वक्त रस्म और रिवाज थे उसमें यह था कि आपकी जो बीवी है निकाह में जो है, ठीक है, जो खानदान से है जिससे आपका निकाह हुआ है, ये याद रखिए, ठीक है? नस्ल उससे चलती थी। और जो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो एक लफ्ज लिखा है कि वो लौंडी थी उनकी, जो बीबी हाजरा थी, और बीबी सारा के जब नहीं हो रही थी औलाद तो फिर लौंडी उन्होंने दी, ठीक है? तो अब ये जो अगर आप देखेंगे उस दौर का जो कल्चर था वो ये था कि पलौठा वही कहलाएगा जो बीवी से पैदा हुआ है, ठीक है? जो लौंडी से है या दीगर बीवियों से हैं, जो कानूनी तौर पर जो बात, अब अगर आपको मैं ले जाऊं इस्लाम के जो मिरास के कवानीन हैं और उस दौर के मिरास के कवानीन जो थे, तो ये है असल बात जहां पर ये बात मुबहम नहीं रहती, खुल जाती है। तो उस दौर में जो माना, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करता। मैं मान रहा हूँ, उधर लौंडी लिखा है, मैं मान रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि अल्लाह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह के वजह से किए थे ना, कोई गलत काम तो किया नहीं था। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए ना,
نہ کہ اسحاق۔ آپ کو خود اپنے سوال کی سمجھ نہیں ہے تو پھر پہلے آپ سوچ لیجئے آپ نے سوال کیا کرنا ہے، تو پھر اس کا جواب آپ ہم سے مانگ۔ کہ آپ کی کتاب ہے پرانا عہد نامہ، اس میں جو کتاب لکھا ہے اکلوتا بیٹا، اور پہلے تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، بعد میں حضرت اسحاق۔ سنیے پھر میں آپ سے عرض کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازمائش کے بارے میں لکھا ہوا، تو وہ تو خود کو اس کو جو لکھا وہ خود۔ اچھا چلے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی ایک سیکنڈ دیجئے، بچے کس کے تھے؟ بھائی جی سنیے، ایک منٹ، وقت نہ ضائع کریں اپنا بھی میرا بھی، ایک منٹ بھائی جی بات سنیں، بھائی جی بات سنیں، بھائی جی بات سنیں۔ اب بچے کس کے تھے؟ ابراہیم اور بی بی سارہ کے تھے یا آپ کے یا میرے تھے؟ یہ مجھے بتائیے، بچے ان کے تھے نا؟ آپ کے یا میرے تو نہیں تھے؟ ان کو زیادہ پتہ ہے یا آپ کو اور مجھے زیادہ پتہ ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں پلوٹھے کو لے کے جا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تو لکھا ہوا ہے وہ اسحاق کو لے کر گئے، تو آج ہم بات کر رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد کہ جناب وہ تو اسماعیل کو لے کر گئے۔ بھائی پلوٹھا کدھر سے آ گیا؟ وہاں لکھا ہے آپ کی پرانے عہد نامے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے اکلوتے بیٹے کو لے کر گئے۔ وہ تو جو سٹیٹس تھا نا قانونی، سنیے اور سن لے بھائی، سن لے اور بھائی سن لے، کے تحت ابراہیم کے بیٹے نہیں تھے؟ اور سن تو لے میرے بھائی، سن لے ذرا غور سے سنیں بات کو۔ سن رہا ہوں نا بھائی۔ ہاں، اس دور کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو جو سٹیٹس تھا قانونی اس کی بات کر رہے ہیں، وہ اکلوتا ہی کہلائے گا چونکہ وہ بیوی سے ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ پہلے آپ اس دور کے جو رسم و رواج تھے، میں نے آپ کو مثال دی، جو میراث کے قوانین ہیں اسلام میں، آپ ان کو پڑھیے، اور اس سے پہلے جو میراث تھے آپ۔ میں مانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہو، میں مانتا ہوں، میری بات تو پھر یہی بات ہے، سنیے، اس رسم و رواج کو چھوڑو، تو وہ یہودیوں والے رسم و رواج تھے، لیکن آپ اللہ کے رسم و رواج کو مانو گے نا۔ سنیے آپ میری بات، اب بات سن لیجیے، آپ نے جیسے کہا ہے نا کہ آپ سچ ابراہیم نے دوسری شادی کی تھی نا۔ میری بات تو سنیں نا آپ، اب آپ کے ساتھ وقت ضائع ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ سنیے میری بات سن لیں، آپ پر میں نے جواب۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، یہ تو واضح ہو گیا نا اب آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میرا ایک دوسرے سوال کا جواب دے دیں۔ جی فرمائیے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے یہاں 4 معتبر انجیلیں، آپ ان کو مانتے ہیں، متی کی انجیل، میں کہہ دیں متی ہے، لوکا ہے، مرکس ہے، یوحنا ہے، چلے بات کریں۔ مانتے ہو ڈاکٹر صاحب؟ میری بات سنیں، آپ مانتے ہیں ان کو؟ خدا کا کلام ہے یہ۔ تو یار ہو رہے سی تھے مونگ پھلی بیچن ڈے ہیں بھائی، ماننے ہیں تو بیٹھے ہیں نا سی مانتے ہو؟ ہاں، تو اس میں جو بھی باتیں لکھی ہیں وہ ٹھیک لکھی ہیں نا؟ یار آپ سوال کرو، آپ وقت ضائع نہ کرو، سوال کیا ہے آپ کا ان پر، یہ بات کریں۔ میرا سوال یہ ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، متی کی انجیل ہے، باب نمبر 1 کا 12 نمبر 16 میں لکھا ہے، متی نے ادھر لکھا ہے کہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے جو مریم کا شوہر تھا، جس سے یسوع پیدا ہوئے جو مسیح کہلاتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، سوال کریں باب نمبر 3 بھائی، آپ سوال کر دیں کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے شوہر تھے، پہلے شوہر تھے یوسف، اس کے باپ کے بارے میں بتا رہے ہیں متی کی انجیل میں کہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے۔ اگر لوکا نے حوالہ دیا یار بھائی، میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے، آپ سوال کریں پلیز۔ سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ یوسف کس کا بیٹا تھا؟ اچھا، یعقوب کا بیٹا تھا کہ ایلی کا بیٹا تھا؟ آپ کی کون سی انجیل کو ماننے، متی کو ماننے کے یا لوکا کو ماننے؟ اچھا، یہ ایک ابھی اسی طرف آ رہے ہیں، اس کا جواب ابھی آپ کو مل جانا تھا، چونکہ ابھی آپ نے کال کیا، پہلے کا جواب دے دیا، ابھی تھوڑی دیر میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ دیکھیے پروگرام پورا۔ اب میں آپ سے یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، آپ تو پادری صاحب ہو، آپ کو سب مکمل تعلیم کا پتہ ہے، ہم متی کی انجیل کو مانے کہ لوکا کو مانے؟ یار میں آپ کو سنو میری بات میری انجیل بتا رہی ہے یوسف یعقوب کا بیٹا۔ سنیے، یہ ایک جو نسب نامہ ہے نا وہ بی بی مریم سے ہے، دوسرا نسب نامہ جو ہے وہ یوسف سے ہے۔ اگر آپ تاریخ کو نہیں پڑھتے، اب یہودیوں کے آپ کو پتہ نہیں ہے تاریخ کیسے چلتی ہے، تو اس لیے چونکہ آپ اپنے اینگل سے سنیے، ایک منٹ خوف کریں، میں آپ کی بائبل کی سے حوالے دے رہا ہوں، اس کو تو کم از کم مانے۔ سنیے، متی کی انجیل میں لکھا ہے، متی نے کہا کہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے جو مریم کا شوہر ہے، اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یوسف جو ایلی کا بیٹا تھا۔
अच्छा, तो इसमें यूसुफ अली का बेटा कैसे हो गया? मक्का तो बता रहा है यूसुफ से यूसुफ। और सुनो मेरे भाई, यूसुफ और मेरे अली का भाई, बेटा और मेरे कैसे हो भाई, गया? और मेरे भाई, अभी गामदी साहब ने क्या कहा है कि इल्मी रवैयों के मुताबिक देखें। अब आप अगर, अब आपको मैं कह रहा हूं, चूंकि हमारा मौजू जो है अभी थोड़ी देर में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको इसका जवाब मिल जाना है जिस तरफ हम जा रहे हैं। अब बात यह है कि आप अगर इन दोनों, सुने मेरी बात सुने, आपका और डॉक्टर साहब एक बात और आपसे, मैं आपसे मौजूदा गुजारिश करता हूँ, क्या मुझे बताएं, आप आखिरी किताब कुरान ओ भाई मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, मेरी बात सुने, आप उसको मानते हो? ये बात है, आप सुन ले मेरी बात। आप बात करें नस्ब नामों की, हम नस्ब नामों पर एक शो करेंगे, आपको इसका तफसीलन जवाब मिल जाएगा। आज हमारा जो मौजू है, जब आपने मसीह की बात की है, इसकी बात सुनिए कि हम क्या कह रहे हैं, और उसके बाद नस्ब नामों पर आपके इसी सवाल पर मुकम्मल हम प्रोग्राम करेंगे और आपको इसका तफसीलन जवाब देंगे। अभी आप इस मूड में नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपको नस्ब नामों पर जवाब मुकम्मल दे देंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कभी कभी हमारे जो अहबाब हैं वो अपनी बात लागू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनको अब ये मुख्तलिफ जो पुश्ते हैं उनकी बात है, निस्बनामे की बात है। मुख्तसर मैंने बताया कि एक तरफ जो निस्बनामा है वो बीबी मरियम से है, एक तरफ जो निस्बनामा है वो जनाब यूसुफ की ज़ात के साथ है। अब इसको तफसीलन हम बयान करेंगे जो निस्बनामों की बात है। आज हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो ये हम बात कर रहे हैं कि लोग कैसे समझे। उस वक्त ये जो तस्वुर था कि मसीह ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, ये किस तरह से हम समझें, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने आपके सामने रखे जो यूनानी और उसके साथ रोमी तस्वुरात थे, फिर हमने बात की यहूदी जो उस वक्त मौजूद थे उनके तस्वुरात थे। तो इसमें जो अहम बात इस वक्त हम चाह रहे हैं कि आप तक पहुंचे, वो आप जरूर इस बात को जहन में रखिए कि बेटा जैसे आज आप समझना चाहते हैं, जिसमें मियाँ बीवी के ताल्लुक के साथ बात की जाती है, तो ये एक इस वक्त तस्वुर है जो लोगों ने बनाया हुआ है, उसको प्रमोट कर रहे हैं और उस पर जोर देते हैं कि हर शख्स इसी तरह से समझे जिस तरह से वो चाहते हैं कि इस तस्वुर को समझा जाए कि किस तरह से अल्लाह की बीवी हो सकती है, किस तरह से फिर अल्लाह का बेटा पैदा हो सकता है। तो ये जो तस्वुर है ये तो आज आपका है या कुछ अरसा पहले कुछ लोगों का होगा, लेकिन उससे पहले जब बात की जा रही है उस वक्त कौन से लोग वहां पर मौजूद थे, जिनके साथ बात हो रही है वो किस तरह से बात को समझते थे। और हमेशा जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की रोशनी में बातों को समझें, तो फिर ही हम इन बातों को समझ सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। और आज हमारे साथ कुछ लोग होंगे फोन पर जिन्होंने इन बातों को समझा है, और वो भी हमारे साथ इस तरह से इन बातों को बताएंगे कि कैसे उनको समझ आई। तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मलक साहब हैं। चूंकि लोग ये कहते हैं ये शिरक है, तो जो बातें रह गई हैं वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन जिस शख्स को ये समझ आई है वो कैसे इस बात को समझे हैं। मलक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मलक साहब के साथ बात करेंगे और फिर यीशु मसीह ने जब बेटा कहा, पस मंजर आपको बताया है, इनको कैसे समझ आई है और फिर किस तरह से समझें, वो बातें अभी आपको बताएंगे। तो मलक साहब हमारे साथ हैं। जनाब मलक साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप? शुक्र है, उसका एहसान है। जी मलक साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये मैंने पस मंजर बयान किया बेटे के ताल्लुक से, और आप दोनों मज़ाहब को समझते हैं, तो जो लोग एतराज़ करते हैं, आपने भी कुछ एतराज़ उठाए और फिर आप पर ये जो एतराज़ थे वो भेद खुले कलाम की रोशनी में कैसे आप समझें इन बातों को जो आज लोग नहीं समझ पा रहे? जनाब, मैं जिन साहब का आपने एक छोटा सा क्लिप दिखाया है, मैं उनकी तरह कहूँगा कि किताब मुक़द्दस और अदयान आलम का मैं एक तालिब इल्म हूँ। रही बात इन हक़ाइक़ के समझने की, तो मैं यही कहूँगा कि जब तक हम अपने ऊपर से तासुब का ढकना हटाएंगे नहीं,
उस वक्त तक बरकत नहीं मिलेगी और नफसानी और जिस्मानी आदमी खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझ सकता। तो जब मैंने अपने आप को न्यूट्रल किया और कहा कि ज़ाते इलाही तू अपने आप को मुझ पर जाहिर कर, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो फिर उसने अपने आप को और इन भेदों को मुझ पर खोला। अरसा लग गया, जमाने लग गए इन हकायक की स्टडी में और मताले में, और आज भी मैं इन हकायक को और इन सच्चाइयों को और बेहतर तरीका से समझने के लिए कोशां हूं, और ये जमाना जो है ये तालिब इल्मी का बहुत खूब गुजर रहा है। जी बिल्कुल, यही मैं दरख्वास्त करूंगा कि बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, आप कैसे समझे इस बात को? शुक्रिया जनाब यारी। मेरे ख्याल में चूंकि आपके जो सामीन हैं उन सामीन को भी मुझे मद्देनजर रखना पड़ेगा, अहले इंजील को भी यानी अहले कलीसा को भी सामने रखना पड़ेगा, और अहले यहूद को भी सामना रखना पड़ेगा, ताकि मैं इस बात को बेहतर तरीका से बयान कर पाऊं कि मैं किस तरह से इस हकीकत को समझा हूं। अगर हम इन अदियान को जो खुदाए वाहिद पर यकीन रखते हैं एक तरतीब दूं, तो सबसे पहले यहूदियत है, अहले यहूद हैं, और उनके बाद अहले कलीसा यानी मसीहियत, मसीही हैं, और उसके बाद अगर मैं कहूं तो वो अहले इस्लाम हैं। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा इनको थोड़ा सा बयान करने के लिए, ताकि बात और बेहतर तरीका से क्लियर हो जाए। हकीकत यह है कि जो लफ्ज तस्लीस आता है वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम का और मुश्किल का सबब होता है। तो मैं तो यूं कहूंगा कि क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए लफ्ज तस्लीस को एक तरफ रख दें, हम सिर्फ इस बात को जानें कि ज़ाते इलाही खुदा जो है उसके बारे में हमारा क्या ईमान है, हम क्या समझते हैं, अहले यहूद क्या समझते हैं, अहले कलीसा क्या समझती है, और अहले इस्लाम क्या समझते हैं। मैं एक तरतीब से आऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीका से बात चलेगी। यूं समझें मैं अपने सामीन से ये अर्ज करूंगा कि आप यूं समझें जैसे आप एक कमराए जमात में बैठे हैं और मैं सामने खड़ा हूं, और दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, और मैंने उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक साइड पर ऊपर अहले यहूद लिखा है, उसके बाद सेंटर में अहले मसीहत लिखा, तरतीब की बात कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, और उसके बाद तीसरे कॉलम के ऊपर मैंने अहले इस्लाम लिखा है कि खुदा के बारे में हमारा क्या तसव्वुर है। अब जब मैं अहले यहूद की बात करता हूं तो बेहतर होगा कि मैं तौरात शरीफ का ही हवाला दूं, तो बेहतर तरीका से हम समझ पाएंगे। तौरात की जब मैं बात करता हूं तो उसकी 5 कुतुब हैं। ये बाइबल मुकद्दस जिसको कहा जाता है उसकी सबसे पहली किताब की बात करूंगा, और उर्दू तर्जमा में मेरे पास ये लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में जमीनो आसमान को पैदा किया। याद रखिए मेरे तमाम सामीन जितने भी आप सुन रहे हैं, किसने जमीनो आसमान को पैदा किया? खुदा ने। तो अब ये जो अहले यहूद का कॉलम है इसमें मैं लिखता हूं खुदा। ओके, अब अगली आयत में क्या है? दूसरी आयत में, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ओके, एक तो हमने खुदा लिख लिया है, और फिर उसके नीचे दूसरे नंबर पर मैं लिखूंगा खुदा का रूह। ओके, खुदा का रूह, और फिर इसके बाद एक और बात मैं लिखना चाहूंगा, और वो तीसरी आयत में है, इसी बाब की पहली किताब के पहले बाब की तीसरी आयत में, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा ने कहा। तो मैं जो अभी कह रहा हूं वो मैं कलाम कर रहा हूं, मेरे मुंह से कलमात निकल रहे हैं, कलमा निकल रहा है। जब खुदा ने कहा तो खुदा ने कलाम किया, ये खुदा का कलमा है, और खुदा के कलाम के वसीला से
कुन फयकुन से ये तमाम आलम वजूद में आए हैं। तो याद रखिए, मैंने पहले कॉलम में ये लिखा खुदा, और फिर उसके बाद खुदा का रूह, और उसके बाद मैंने लिखा है खुदा का कलमा। एक गलत फहमी ना ले जाइएगा कि मैंने नंबर 1 खुदा और नंबर 2 खुदा का रूह और नंबर 3 यानी नीचे लिखा है कलमा। तो कहीं इस बात को यूं ना समझिएगा कि मैं यानी जो खुदा का कलमा है वो सबसे नीचे है, तीसरे नंबर पर है। नहीं 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 नहीं, ये बराबर है। खुदा खुदा है, खुदा का रूह खुदा है, खुदा का कलमा खुदा है। कैसे? मैं बाय द वे अभी अगर आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हों तो कल अगर आप रावलपिंडी में यही रिकॉर्डिंग सुन रहे हों, तो अगर कोई मेरा दोस्त, मेरा जानने वाला वहां पर मौजूद हो, तो वो ये कहेगा, अरे ये वो मलिक साहब की आवाज नहीं है, ये मलिक साहब नहीं बोल रहे। भाई मैं वहां उस रेडियो में बोल नहीं रहा, वहां पर मैं मौजूद नहीं हूं, मैं उस छोटी सी डिबिया में समा नहीं सकता, मलिक साहब वहां पर नहीं पहुंचा हुआ। ये मेरा कलमा है, मेरा कलाम है जो मैंने किया, तो आपको वहां पर सुनाई दे रहा है। एक तो ये कि खुदा, और फिर खुदा का रूह और खुदा का कलमा। खुदा का ही रूह है, खुदा का ही कलमा है, साफ जाहिर है ये खुदा है। अब दूसरे कॉलम में मैं चलता हूं जहां पर अहले कलीसा हैं, उनका क्या ईमान है और वो क्या समझते हैं। याद रखिए, जो तालीम मैं दे रहा हूं, ये जो तसलीस का लफ्ज है उसको तो निकाल दिया, लेकिन उसकी तालीम जो है, उसकी तालीम तौरात में भी, जबूर में भी, तौरात में भी, इंजील में भी, और सहाइफुल अंबिया के अलावा मैं कुरान हकीम की भी बात कर रहा हूं कि वहां पर भी ये तालीम मौजूद है। मानू या नहीं मानू ये एक अलग बात है। तौरात के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जब मैं अहले कलीसा या अहले इंजील वाले कॉलम में जाता हूं, तो वहां पर तालीम बिल्कुल सेम उसी तरह से अहले यहूद की तरह नहीं, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल सेम उसी तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले कॉलम में मैंने सबसे टॉप पर खुदा लिखा है, अब अहले मसीहियत में वो खुदा है, लेकिन अहले मसीहियत के लिए वो खुदा सिर्फ खुदा नहीं है। अहले कलीसा के लिए वो खुदा बाप है। रब का क्या मतलब है? पालने वाला। और जो पालने वाला है, परवरिश देने वाला है, स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर हम उसको बाप कहते हैं, फिजिकली उसको बाप नहीं कहते हैं, उसकी कोई जोरो नहीं थी। एनी हाउ, यहां पर जब मैं अहले कलीसा की बात करता हूं तो ऊपर मैं खुदा कह रहा हूं, लेकिन साथ ही ब्रैकेट में खुदा बाप कहूंगा, क्योंकि ना अहले यहूद के लिए वो बाप है, ना अहले इस्लाम के लिए वो बाप है। बनना चाहता है लेकिन बनाना नहीं चाहते, इसलिए वो अहले कलीसा के लिए खुदा बाप भी है, सिर्फ वो खुदा नहीं है। सेकंड, पहले कॉलम के दूसरे नंबर पर मैंने कहा था खुदा का रूह, और ये जो खुदा का रूह है, इसको दूसरे कॉलम में अहले कलीसा रूहुल कुद्स कहते हैं, या मुकद्दस रूह, पाक रूह उसको कहते हैं। और फिर नंबर 3, पहले कॉलम में तीसरे नंबर पर जो मैंने कहा था कलमा, उस कलमा को अहले कलीसा मुजस्सम कलाम यसुअल मसीह कहते हैं। वही कलमा मुजस्सम होकर यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत के मुताबिक मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, हम उसको मुजस्सम कलाम कहते हैं। दोहराई के तौर पर अहले यहूद में खुदा और अहले कलीसा में खुदा खुदा बाप है। अहले यहूद में खुदा का रूह, अहले कलीसा में रूहुल कुदस या पाक रूह है। और फिर अहले यहूद में कलमा, अहले कलीसा में मुजस्सम कलमा, वही कलमा जिस्म इख्तियार करके आया हमारे ईमान और बाइबल मुकद्दस, इंजील मुकद्दस के मुताबिक, और वो है हुजूर अल मसीह, सैयदना ईसा अल मसीह, जिनको कहा जाता है। अब तीसरे कॉलम की बात आ रही है। याद कीजिए, खुदा, खुदा का रूह और खुदा का कलमा। इंजील के मुताबिक खुदा यानी बाप, और फिर उसके बाद रूहुल कुदस, और उसके बाद
कलमा, जिस कलमे को खुदा के मुंह से निकला हुआ के एतबार से हम बेटा कहते हैं। और बाय द वे, हम कौन होते हैं जब परवरदिगार खुद कह दे कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, तो मैं और आप कौन होते हैं उसका इनकार करने वाले। और अगर किसी और को उसने बेटा नहीं कहा तो ये हमारा कसूर नहीं है, ये उसकी खुदा की अपनी बात है कि किसको वो बेटा कहे और किसको वो बेटा नहीं कहे। एनी हाउ, अहले कलीसा के मुताबिक खुदा बाप, और फिर रूहुल कुदस, और फिर तीसरे नंबर पर कलमा यानी बेटा है, मुजस्सम कलमा यीशु अल मसीह। तीसरे नंबर पर जब हम आते हैं अहले इस्लाम के बारे में, तो कुरान हकीम 12 बार मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारी बातें कहता है। और इतनी बात कह दूं कि जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान हकीम में 4 से 5 मरतबा जिक्र आया, जबकि 24 से 25 मरतबा हुजूरुल मसीह का जिक्र कुरान हकीम में आया है। यानी बहुत बड़ा मकाम दिया गया है। और मैं इस्लाम की और नबी करीम की और कुरान हकीम की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ताजीम करता हूं, क्योंकि मेरे मसीह का जिक्र वहां पर मौजूद है। कई ऐसी बातें हैं जो इंजील मुकद्दस से मिलती हैं, तो मैं उनके साथ मुत्फिक हूं। अब यहां पर जब मैं अहले इस्लाम की बात करता हूं, तो वो जो अहले यहूद में खुदा है, अहले कलीसा में खुदा बाप है, उसी को अरबी में वहां पर वो अल्लाह कहकर मुखातब होते हैं। बहुत सारे लोग इस पर एतराज करते हैं कि अल्लाह कहना चाहिए या खुदा कहना चाहिए। बहरहाल अभी हम इस बात में नहीं पड़ेंगे। अहले इस्लाम के मुताबिक वो खुदा या अल्लाह है, इस पर किसी को भी कोई एतराज नहीं। इस्लामिक बुक्स में भी खुदा का नाम बार बार आता है और अल्लाह का भी नाम आता है। ओके, वहां पर वो बाप नहीं है लेकिन अल्लाह है। अब दूसरे नंबर पर अहले यहूद के मुताबिक और अहले कलीसा के मुताबिक रूहुल कुदस है। इसी रूहुल कुदस को अहले इस्लाम में रूह अल्लाह कहा गया है, और मासवा हुजूरुल मसीह के किसी और को रूह अल्लाह नहीं कह के मुखातब किया गया है। रूहुल कुदस, रूह अल्लाह। और नंबर 3, अहले यहूद में भी कलमा है और अहले मसीहियत में कलमा मुजस्सम हुआ और उसको बेटा कहा जा रहा है। और अहले इस्लाम में उसी को कलमातुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह है, रूह अल्लाह है और कलमातुल्लाह है। वही बात अहले यहूद में भी पाई जाती है, वही बात अहले कलीसा में भी पाई जाती है, वही बात अहले इस्लाम में भी पाई जाती है। अब हम उसको मानते हैं या नहीं मानते, ये हमारी अपनी बात है कि हम कहां पर हैं और कैसे हैं। खुदा एक ही है, हम तमाम मानते हैं खुदा एक है। हम 3 खुदाओं के कायल नहीं हैं, एक ही वाहिद खुदा है। लेकिन खुदा रूह भी है, और खुदा जिस्म इख्तियार करके जब इस दुनिया में आता है इंसानी जात में होते हुए, तो वो बेटा भी है। ये वो मुख्तसर सा डॉक्टर साहब बहुत मैं शुक्रिया। जिस तौर पर समझा हूं मैंने बयान किया है, आपके बहुत सामने शुक्रिया। मजीद आप रोशनी को डालेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलक साहब। अब थोड़ा सा ये बताइए। हेलो मलक साहब। जी जी, मैं सुन रहा हूं। हाँ जी, ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये शिरक है, तो चूंकि आप तीनों मज़ाहब पर आपकी गहरी नज़र है, तो ये फिर जो शिरक की तारीफ है उसकी रोशनी में ये शिरक नहीं है, इसको कैसे समझेंगे? मैं ये कहूंगा कि शिर्क वो है कि जब मैं ज़ाते इलाही के बराबर किसी दूसरी हस्ती को मकाम दूं। तो फॉर एग्जाम्पल अल्लाह, या फॉर एग्जाम्पल मैं खुदा से मांगता हूं, लेकिन अगर खुदा को छोड़कर मैं गैर माबूदों के पास चला जाऊं, बुतों के पास चला जाऊं, मरे हुए लोगों के पास चला जाऊं और उनसे कुछ मांगना शुरू कर दूं, तो ये शिर्क सबसे बड़ी है। क्योंकि जब मैं ये जानता हूं कि जो कुछ मुझे देता है वो खुदा देता है और मुझे उसी से दरखास्त करनी चाहिए, लेकिन जब मैं खुदा के बराबर किसी को शायद वो मकाम तो ना दूं, लेकिन इतना करूं कि जब खुदा से मेरी पूरी ना पड़े, इंतजार में देर हो जाए, तो फिर मैं गैर माबूदों के पास चला जाऊं, बुत परस्तों के पास चला जाऊं,
वो जो खुद मोहताज हैं, इवन उनकी हड्डियों को कीड़े भी खा गए, फिर भी वहां पर जाकर मैं माथे रगड़ूं, तो गोया ये सबसे बड़ी शिर्क है, जब खुदा को भी और बहुत साथ शुक्रिया। साथ किसी और को शामिल किया जाए कि ये भी दे सकता है, तो ये शिर्क है। ये शिर्क नहीं है जो हम बयान करते हैं, क्योंकि खुदा के अलावा हम कोई दूसरी और तीसरी शख्सियत नहीं बना रहे। खुदा में ही खुदा का रूह है, खुदा में से ही वो कलमा निकला है। ये कोई अलग बात हम नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया मलक साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर से इस बात को खोला है, और ये है कि खुदा के बराबर किसी को लाना ये शिरक है, लेकिन कोई इंसान या कोई हस्ती या कोई मखलूक खुदा के बराबर आ जाए, लेकिन अगर खुदा इंसान बनकर आए, कलमा बनकर आए, तो क्या उसको शिरक कहेंगे? बहुत शुक्रिया मलक साहब हमारे साथ। अब मैं चाहूँगा कि मैं चंद बातें जल्दी थोड़ा वक्त हमारे पास है, एक कॉलर है हमारे साथ, जल्दी से इनकी बात सुन लेते हैं और फिर इसी टॉपिक को हमने आगे भी जारी रखना है आने वाले हफ्तों में। तो हमारे साथ ये कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी, मेरी तरफ से आप सबको, पूरी टीम को सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी सलाम। बात कीजिए, वक्त तकरीबन ख़त्म होने वाला है। हाँ, तकरीबन वही ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि मलिक साहब की बातें सुन रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। वो बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे, मगर ये कि वो सवाल जो था, अब वो इस प्रोग्राम में तो शायद ना हो पाए। जी सवाल ये है कि क्या ये कहना, जो हमारा टॉपिक है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो क्या इसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है? और अगर वो खुदा हैं तो हमारे करीबी भाई जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आप एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं। जी, अभी मैं यही बात, बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपने ये बात की। अभी मैं इस्लामी पस मंजर जो है ना, अभी उस पर आना था हमने, तो कोई और बात करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एक छोटी सी एक और चीज जी जी जरूर। इसी के साथ जो मिलता हुआ है कि कहता है, वो कहा जाता है कि खुदा जो है ना वो आजमाया नहीं जाता, जबकि खुदा यीशु मसीह की भी आजमाइश हुई, तो इसको भी जी बिल्कुल वो बातें ऐसी हैं जो हमने आने वाले ये अभी बुनियादी बात है, तस्वुरात पेश कर रहे हैं। बेटा जब कहा तो पस मंजर क्या था। बहुत शुक्रिया, आप कॉल करते रहिए हमें जब भी आपके पास वक्त हो। एक और भी कॉलर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं बराह रास्त शो फजल रबी में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी शुक्र है खुदावंद का, आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे? वक्त हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो रहा है, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। ओके डॉक्टर साहब, बस आपका प्रोग्राम देखा तो उसमें अच्छी खासी मालूमात मिल रही थी, और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से, जो कि मैंने मसीहत और इस्लाम के कुछ खास अकायदों पर जो किया है, जी वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जल्दी से, अगर आप बिल्कुल 5 मिनट आपके पास हैं, और फिर मुझे इस्लामी जो तस्वुरात हैं वो नेक्स्ट शो में करेंगे। आपको मैं वक्त दे रहा हूँ 5 मिनट में, इख्तिसार के साथ अहम निकात जो आप बताना चाहते हैं बता दीजिए, चूंकि आपने फरमाया कि आप भी दोनों मज़ाहब के तालिब इल्म हैं। जी, बचपन से ये सुना है कि जब अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया तो उसमें अपनी रूह फूकी, और फिर आदम से लेकर आज तक हर शख्स में वो रूह मौजूद है, क्योंकि इसका ना तो कुरान में कहीं तज़किरा है कि हर इंसान के अंदर, बशर में खुदा ने स्पेशली तौर से वो रूह फूकी है। मगर क्या वजह है कि, सवाल ये था कि क्या वजह है कि अल्लाह ने स्पेशली तौर पर जीसस को पैदा किया, और इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर दिलाया है कुरान के अंदर कि वो आप देखें सूरा 2 उसकी आयत 87, सूरा 2 आयत 253, और सूरा 3 सूरा 19। अब इंजील और कुरान के मुताबिक जीसस को जो है ये कहा गया है कि उनको खुदा ने ये कहा है कि रूह मिन्हु, कि मैंने अपनी रूह के जरिए उनको पैदा किया, रूह भेज के पैदा किया। अब यहाँ पर ये साफ जाहिर है कि एक खुदा है और उसने अपनी रूह के जरिए मसीह को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो यहाँ पर तो दो मुख्तलिफ शख्सियातें नजर आ रही हैं जो तख्लीक का काम कर रही हैं। तो एक तो या तो ये कंफर्म होना चाहिए हमारे को कुरानिक पर्सपेक्टिव से कि जो इस रूह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया है वो खालिक है या मखलूक। बहुत अहम नुक्ता है नाजरीन, ये सुनिए कि जो आदम में रूह फूंकी गई वो, और जिसको खुदा कह रहा है कि
मेरा रूह, मुझ में से रूह। तो ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे समझा जाए, ये रूह मखलूक है या खलक करने वाली है। तो आप कैसे समझे मोहतरम इसको फिर? क्योंकि जब आप देखें कुरान के अंदर और इंजील का जब मैंने मुताला करा तो उसके अंदर बहुत से मकामात पे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो रूह जो है वो खालिक है, क्योंकि कहीं भी उसको ये जिक्र नहीं मिला कि उस रूह को तख्लीक किया गया है। खुदा का रूह जो है वो मखलूक नहीं हो सकती, वो खुद खालिक है। और जब वो जिस्म ले रही है तो वो फिर आदम की रूह नहीं है जो मखलूक है, बल्कि क्रिएटेड जो क्रिएटर है वो रूह खुद जो खलक करने वाली रूह है वो है जो जिस्म में आ रही है। तो ये बात आप पर खुली है क्या? जी बिल्कुल। और अब कुरान के अंदर जो है मुख्तलिफ आयात के अंदर सिर्फ यसू मसीह को ही रूहुल मुकद्दस कहा गया है। फिर एक बहुत अच्छा लक़ब है जो किसी को नहीं दिया गया, वो रूहुल अमीन है। तो ये सारे लक़ब जो है यसू मसीह को दिए गए हैं। अब यहाँ एक सिर्फ मेरे को थोड़ा सा चैलेंज ये हुआ था जब मैंने सर्च करा था बहुत से उलमाओं से, तो उन्होंने कहा था ये रूह जो है वो जिसको कहा जा रहा है रूह मुकद्दस और रूहुल अमीन, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। मगर जब मैंने और ज़्यादा इस पे तफ्तीश की और उसको सर्च करा तो जिब्राइल जैसे वो तो फरिश्ते हैं, और अरबी के अंदर फरिश्ते को जो है वो मलाइक कहा जाता है। तो कुरान के अंदर अगर आप देखें कि सूरा 8 की जो 12वीं आयत है उसके अंदर मलाइका लिखा गया है तमाम फरिश्तों को, और जब सूरा 58 और 22वीं आयत पे जाते हैं तो वहाँ रूहुल मुकद्दस खास तौर से लिखा गया। और यह रूहुल मुकद्दस और मलाइका में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि रूहुल मुकद्दस जो है वो तख्लीक कर रही है। मलाइका का जो काम था और हदीस के ज़रिए भी और हर कहीं इंजील के मुताबिक जो फरिश्तों का जो काम है, इंजील का काम है, वो तो पैगाम को लेकर आना है, तख्लीक नहीं करना। तख्लीक जो है वो रूहुल मुकद्दस से हुई है और यही चीज़ें जो हैं इसके अंदर हैं। तो बस यही मेरा नुक्ता था कि ये चीज़ें हैं तो बहुत सारे पॉइंट, मगर वक्त के हिसाब से बस एक ये नुक्ता पेश करना चाहूँगा कि मैंने इस तरीके से समझा कि कुरान की हैसियत से भी वहाँ तसरीस का हालांकि पूरा खुल के जिक्र नहीं है, क्योंकि कुरान में तो तौहीद का भी खुल के पूरा जिक्र नहीं है, क्योंकि पहला कलमा जो है वो तौहीद है, कलमा तैयबा, और वो कुरान में कहीं भी मौजूद नहीं है। और उसके भी बहुत सारे मतलब अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे इशू हैं जो बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। मगर यह है कि पहले इस नुक्ते के ऊपर रूहुल मुकद्दस पे एक ये बात जाहिर हुई है कुरान और इंजील के मुताबिक कि एक खुदा है और उसकी रूह है, और ये दोनों खालिक हैं क्योंकि इन दोनों ने तख्लीक करी है। बहुत शुक्रिया। कुरान के मुताबिक मासूफ फरमा रहे हैं कि खुदा का रूह खुदा ही हो सकता है चूंकि खुदा खालिक है। और जब हम देखते हैं हुजूर मसीह की ज़ात में, जब वो खुदा का बेटा बनकर आया, तो कुरान और अनाजील आज हमें ये पैगाम पहुंचा रही हैं। जब उस पर एतराज़ करने वाले आए, उसके मुखालफीन आए और उसके खिलाफ साजिशें करने वाले आए, तो आप यीशु अल मसीह ने फरमाया कि तुम जो सवाल उठाते हो, जब मैं ये कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो वो काम देखो जो मैं कर रहा हूं। अपनी कुतुब में पढ़ो, खुदा की सफात को जानो कि जो कुछ खुदा कर सकता है, अगर मैं उसका बेटा हूं, मैंने ये दावा किया है, तो मेरे कामों को देखो। खुदा तख्लीक करता है, और हम कुरान और बाइबल में देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो रूह अल्लाह है, जैसे रूह से तख्लीक चीजें हुई। और यूहन्ना लिखता है कि कोई भी चीज उसकी कुदरत के बगैर पैदा नहीं हुई। खुदा जिंदगी बख्शता है, और जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया तो उसने इस बात को साबित कर दिया कि वो भी जिंदगी बख्शने वाली रूह है। वो खुदा का बेटा है। जो खुदा करता है वो बेटा भी कर सकता है। जब वो अपने शागिर्दों के साथ थे, तूफान आया और उन्होंने लहरों को और हवा को झिड़का और लहरें सुकूत हो गया और हवा ठहर गई, और वहां पर वो पुकार उठे कि यही खुदा का बेटा है। आज हम किस तरह से समझते हैं? खुदावंद हमारी तरफ देख रहा है कि हम उन हकीकी बरकत को पा जाएं जो यीशु मसीह के वसीला से हमें बख्शी गई हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।